بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہمارا 9 شفیع عقیل 1930 میں ان کی پیدائش ہے، 2013 میں وفات ہے۔ شفیع عقیل لاہور کے قریب واقع گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف مشہور صحافی، ادیب رائٹر اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے کر مجید لاہوری کے رسالے نمکدان سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں اخبار جہاں یہ مشہور رسالہ تھا اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے، وہاں پر کام کرتے رہے۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پہ تبازات ہونے کا خود سے لکھے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی اور علمی اور ادبی خدمت انجام دی ہے۔ ان کی تصانیف اور تالیفات میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو اکٹھی کی ہیں، تالیفات اکٹھے کرنے کو کہتے ہیں، ان میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانی، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہیں، مجید لاہوری، ادبی مکالمے اور ہماری منزل، غازی یا شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹر گلز کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ ان کا تعارف ہے، آپ یاد کر لیجیے گا۔ آپ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی جانب۔ سبق کا نام ہے چغل خور۔ اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں اور یہ چغل خوری کے بجائے فتنہ پروری لڑائی جھگڑا زیادہ ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ لوک کہانیاں، یہ لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادر جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اس نے کئی بار اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی، بہت زیادہ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی ارد گرد کی خاک چھانی، تلاش کی، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازمت پر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اسے دریافت کیا، کیا تم کیا کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لو گے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی اس بات پر بڑا تعجب حیران ہوا کہ یہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، مجھے صرف آپ اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد صرف آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔
चुनाचा चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में भी रहता था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों का चारा काटता, हल चलाता, गाही करता यानी बीज बोता और इसी तरह किसान के काम में उसके बराबर का यानी मदद करता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और इसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में की तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक इतनी इस आदत पर जबर किया हुआ था यानी काबू किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनांचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा अब चाहे कुछ भी हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है यानी उसको एक बीमारी हो गई है जिसमें तमाम जिस्म जो है उस पर ज़ख्म हो जाते हैं जो मरीज़ को बहुत तकलीफ़ में रखते हैं। उसने ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया, किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। इससे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नहीं थी उससे ज़्यादा कहीं हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीन निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला इसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा इसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ। चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। तो उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़बान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा इसे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुँचा और उसे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब यानी हैरानी से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सारा दिन काम का छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपन में यानी हैरानी में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँच उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ रोज़ मार कर अदमुआ यानी मरने के करीब कर देता है। वो इसे इस जालमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, हमारी बहन ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसानी से किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगे यानी गुस्से में आ गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उससे कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो फिर भी अपने भाई की कुछ मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे पूछा, ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रूहानसा यानी रोता हुआ समूह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, इसके साले उसे रोज़ आकर जुदोकोब करते यानी मारते पीटते और एक तुम हो कि तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा।
ये सुनकर चुगलखोर ने कहा कि तुमको मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे, यानी उनको शदीद गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा कल हम देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सबसे ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान यानी बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं हुई कि और अपने कामकाज में इतना मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कन अखियों से यानी छुपी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो इसे काट ना खाए, इसीलिए वो इसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किस तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़बान लगा कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। यूँ ही वो छाछ का मटका रोटियों की चंगेरी, छाछ का मटका यानी लस्सी का मटका रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रखकर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई और फिर यूँ ही किसान ने रोटी पकड़ने को आगे हाथ बढ़ाया तो उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली, उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है, बीमार स्किन की बीमारी में मुब्तला हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर हाथ आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की यानी उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ यानी इधर उधर ना देखा, पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई यानी उसको मारना शुरू कर दिया। जो ही इसने बीवी पे जूते बरसाने शुरू किए, करीब खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े यानी आवाज़ें निकालते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर ने हमें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और इसके बाद वो एक दूसरे पर पल पड़े यानी टूट पड़े। वो सर पर टूल हुई एक दूसरे का सर फाड़ा, वो लाठियाँ चली के सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए। उन्होंने बीच बचाओ यानी सुलह सफाई कराकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उनका सबका गुस्सा कदरे कम हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने हमें ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात कह चुके तो पता चला ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है यानी उसी ने किया है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वह चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वह चुगलखोर है तो किसान और उसके साले और उसके भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। पंजाबी लोक दास्तान। आपने इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ यानी शफ़ी कील का तारुफ़ और मुश्किल अल्फाज मुकम्मल मानी के साथ याद कर लेने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।